Hello, everyone. Welcome to another interesting episode of The Vision Grid. I am trying to bring in most dynamic entrepreneurs, founders of the EV industry in this series of podcasts. So we have got very interesting startup today. I am calling it startup, but it is really scaling fast. So we have the founder of Battery OK Technology, Shubham Mishra, a startup which is claiming and doing and preparing to export its products to China, wherein complete industry, EV industry of India, is dependent on China for importing technology, importing products, importing parts of the vehicles. One company that I have seen, which is already preparing to export products to China. Hello, Shubham. How are you doing today? Hello, Sachin. I'm good. Thanks for inviting me. Great. Shubham, so very happy to host you here today. Unfortunately, we are not doing one to one, and fortunately, we are doing online today. So, Shubham, I want to understand more about the diagnostic tool, the tech that they have developed, and everyone would like to understand what kind of development you have done. What is that product? Please let me know. Yeah. Sure. So we have developed this product called as EV Doctor. It is already working with 120 plus EV brands worldwide. It's basically a standalone independent diagnostics tool where Mm. we have deployed more than 25 machine learning based models for anomaly detection, classification of faults, getting health, performance, safety, then about the real on ground fault. So all these crucial parameters and insights are directly helpful to any EV or battery related business for getting the decisions right related to the batteries. ग्रेट, लवली। सो बैटरी इंडस्ट्री में कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी जिसकी वजह से आपको लगा कि इस टूल की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है? कहाँ से ये थॉट जनरेट हुआ? अच्छा। सो मैं थोड़ा-सा जर्नी के बारे में डिस्कस करूँगा, जिससे जी। ऑडियंस को भी आइडिया मिले एंड इफ एनी स्टार्टअप फाउंडर इज़ इन दैट जर्नी इन एनी ऑफ दैट पॉइंट, he हुँ, can also do something about it. So हुँ, I started my journey as a design engineer in Gensol. So हुँ, Gensol में मैंने काम किया एज़ अ डिजाइन इंजीनियर 1 साल काम किया. Then I saw one e-bike in their basement in Ahmedabad area. सो पता चला कि हाँ, हम भी इंजीनियर हैं, हमने मास्टर्स किया है, पेटेंट्स फाइल किए, रिसर्च पेपर्स फाइल किए हैं, हम भी ये बना सकते हैं. So we हुँ, thought of building one e-bike, got grants from government, named the company E-Vega Mobility Labs. Veg means velocity in Sanskrit. So हुँ, E-Veg means electrical velocity. ऐसे करके हमने EV का जर्नी शुरू किया. We started building e-bikes. We got some funds from Startup India, Startup Gujarat, and a lot of incubators also supported us. That हुँ, includes IIT Gandhinagar and GUSEC. So we built some prototypes. बाद में पता चला कि अरे हमको बेचना आता नहीं है. We were only good at building them. Okay, we named them cyber bikes. हमने इन लोकल डीलर्स को मिले, ईवी इवेंट्स में गए, बहुत सारे स्टार्टअप के इवेंट्स में गए, वहां पे भी डिस्प्ले किया. Even ministers, like we met a lot of ministers at that time, but they patted our backs and then nothing happened. Okay, so we we were happy that some ministers, like they acknowledged the part, लेकिन आगे पता ही नहीं था क्या करें. And then the हुँ, covid hit. हुँ, वी वर क्लूलेस. सप्लाई चेन नहीं समझ में आ रहा था, करे क्या, ई बाइक्स का सेगमेंट कौन है, टारगेट सेगमेंट क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, कुछ नहीं पता था. सो हुँ, आई थॉट ऑफ डाइविंग डीप इनटू बैटरीज. आई हुँ, रैंडमली कोल्ड ईमेल्ड द नोबल लॉरिएट्स ऑफ लिथियम बैटरी केमिस्ट्रीज. मैंने देखा कि सर व्हाट डू आई डोंट नो एनीथिंग. One of them, Stanley Vettingham sir. So he replied and he suggested some books to read. So I started randomly reading about lithium ion batteries. कोविड गया, सेकेंड वेव शायद आने वाला था, उससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी जो लिथियम बैटरी रिलेटेड थी. सो हुँ, आई वाज गुड इन एकेडमिक्स एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट, बट रियल पीपल से कैसे बात करना, बिहेव कैसे करना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करना, बिजनेस क्या होता है. सो gradually I started reading about that from blogs, from articles and all. Started attending EV conferences, battery conferences, and then found कि बैटरी वाला जो मैंने पढ़ा है वो काफी काम का है, काफी रिलेट हो रहा है और काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं. हुँ, वन रैंडम फाइन डे आई वाज इन गांधीनगर इन अहमदाबाद, और एक ईवी डीलर के वहां मैं विजिट पे गया था रैंडम इनसाइट्स के लिए कि बैटरी कैसे, क्या करते हो बैटरीज का, कहाँ से लेते हो बैटरीज. रैंडम आई वाज मेकिंग नोट्स एंड आई सॉ हुँ, वन मैकेनिक फ्रॉम दैट गराज, फ्रॉम दैट ईवी सर्विस सेंटर. उन्होंने हुँ, अपना हाथ रखा हुआ था बैटरी के सरफेस पे.
Okay, Hmm. so if the battery is hot, then the battery is bad. That was the hypothesis that I got in the hindsight. So just like Hmm. checking fever, he was testing the batteries. I asked Hmm. more about it कि और बाकी लोग कैसे चेक करते हैं, बाकी लोग भी ऐसे चेक करते हैं, बोले हाँ ऐसे ही तो चेक होता है. So lithium बैटरी को ऐसे चेक करते हैं, lead acid बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करते हैं. That was his hypothesis of how batteries should be tested. Hmm. अब मैंने और डाइव किया डीपर इनमें कि और कौन से टूल्स आते हैं. सो सीडीसी मशीन्स जो सबसे सक्सेसफुल टूल्स थे वो मिले, जो काफ़ी डीलर्स के पास थे, और मेजॉरिटी डीलर्स के पास वो नहीं थे. मेजॉरिटी डीलर्स के पास 150-200 रुपए वाले मल्टीमीटर्स थे, जिसमें वो वोल्टेज चेक करके छोड़ देते थे. दे वर यूजिंग दिस बल्की सीडीसी मशीन्स जिसमें चार्जिंग करो, डिस्चार्जिंग करो, चार्जिंग करो, डिस्चार्जिंग करो. एंड इवन आफ्टर सिटिंग फॉर 7 to 8 hours straight, you will only get capacity and voltage. You will not get anything related to safety, related to health, related to performance, related to the faults inside the battery. So dive deeper into that. And then we partnered with IIT Gandhinagar, did thermal runaway experiments with them. 40-50 battery we put on fires literally to just get electrical equivalent data of कि फायर से पहले कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स चेंज होते हैं, वी कैन डायरेक्ट विच कैन डायरेक्टली पॉइंट आउट टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट. सो ये जर्नी रहा. अभी काफी ईवी ब्रांड्स अपने एसओपी में ईवी डॉक्टर इंक्लूड करके चलती है, एंड इन आईआईटी गांधीनगर ईवी डॉक्टर इज taught as part of their curriculum. Wow, amazing. Lovely. So, what is this device? क्या ये डिवाइस हर प्रोडक्ट के साथ में रखी जाती है या इट इज़ अ डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड आफ्टर सेल्स एज़ अ सर्विस का जो टूल होता है उसमें यूटिलाइज़ होती है? क्या है ये? ओके, सो ये मॉड्यूल नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन सिंपल पोर्टेबल डिवाइस है, जो 300 ग्राम्स का है, कोई भी कहीं भी कैरी कर सकता है. ये बेसिकली बैटरी और चार्जर के बीच में कनेक्ट होता है. थ्रू दिस डिवाइस यू हैव टू चार्ज योर बैटरी. ये वोल्टेज, करंट, टाइम को इनपुट पैरामीटर्स की तरह लेता है. जो भी कंप्यूटेशंस होते हैं, वो कंप्यूटेशंस क्लाउड पे होते हैं, और आपको जो भी रिपोर्ट होती है डायग्नोस्टिक्स की, वो आपको ऐप पे मिल जाती है. हम जो कंप्यूटेशंस करते हैं वो डीसीआईआर बेस्ड है. सो वही इसका प्रिंसिपल है. एज द बैटरी एजेस, द एससीआई लेयर गेट्स थिक, राइट, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द डीसीआईआर वैल्यूज. अब हुँ, इंडिया में और काफी जगह पे एसीआईआर बहुत डिस्कस होता है, जिसमें हम 1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लगा के रिस्पॉन्स देखते हैं, बट हुँ, नोबडी इज डिस्कसिंग डीसीआईआर वैल्यूज. So that insight I got from Judy Jivarajan ma'am. She was working in battery safety at NASA. Currently, she is research director at Underwriters Laboratory. So ये insight हमारे बहुत काम का आया कि अगर हमको DCI राइट पता है और एक्यूरेट पता है, we can know about the health, performance, lithium plating, dendrite formation, सारा DCI वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करता है. ओके। सो जब आप इंस्टेंटली डायग्नोस्टिक किसी भी बैटरी का कर पाते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी बैटरी इंडस्ट्री कुछ रीशेप हो रही है? डू यू थिंक दैट इट इज़ रियली इम्पैक्टिंग द ओवरऑल बिज़नेस ऑफ बैटरी पैक्स इन इंडिया? करेक्ट, करेक्ट. या डेफिनिटली. सो सीडीसी का सबसे अच्छा बात और सबसे बुरा बात ये है कि वो कैपेसिटी के लिए अच्छा है. ओके, हुँ, सो सीडीसी इज लाइक वेरी गुड फॉर कैपेसिटी. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी यू कैन नो, बट हुँ, हेल्थ, परफॉर्मेंस, सेफ्टी फॉल्ट्स अगर हमको पता हो, सो हम फास्टर डिसीजंस ले पाएंगे. हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, लाइक मोर देन 80% ऑफ आवर क्लाइंट, जिसमें 3000 प्लस ईवी बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग वर्कशॉप्स, ब्रांड्स, एवरीथिंग, उन वो अगर दिन की 3 बैटरी चेक कर रहे हैं, then using EV Doctor, they can check more than 15 to 18 batteries per day. Okay, that directly impacts their livelihoods, that directly impacts their economic growth, that directly impacts the satisfaction that they are able to provide to the customers. हमने बहुत सारे मिसहैप्स रोके हैं, हमने बहुत सारे फॉल्ट्स को राइटली एड्रेस किया है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन नॉट जस्ट ऑन डीलर्स बट ब्रांड्स पे भी काफी पॉजिटिव है. तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है बैटरी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इससे? सो बैटरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जहाँ भी टच पॉइंट्स हैं, जो भी टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे बैटरी के रिलेटेड हमको डिसीजन लेना है रिलेटेड टू हैंडलिंग. ओके, सो वी आर मेकिंग द पेस लाइक एटलीस्ट 6 to 7x. ओके, सो हुँ, अगर वो 1 घंटे में एक बैटरी चेक कर पा रहा था, नाउ ही इज एबल टू चेक 7 बैटरीज इन 1 आवर. सो हम 5 to 7x इजीली उनका टाइम बचा रहे हैं या एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं. एट द सेम टाइम, जब हमको बैटरीज का फाइनेंसिंग करना होता है, अंडरराइटिंग करना होता है, देन हुँ, वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ओईएम्स, एंड हुँ, ओईएम्स आर हैविंग देयर ओन बीएमएसएस, एंड
we can't say that all the BMSs will tell the truth when it is configured by the OEM, right? So we need an independent diagnostic tool which can share the truth without getting any confirmation bias from any OEMs. तो बैटरी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या आपकी टेक का अपोज़ नहीं करते? हाँ, करते हैं। सो काफ़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स ने अपोज़ किया और उनमें से मेनली ये उनका दिमाग रहता है कि स्मार्ट बीएमएस तो बताता है। स्मार्ट बीएमएस सेल वाला कैपेसिटी बता देगा, ये बता देगा, वो बता देगा और हम कभी स्मार्ट बीएमएस के अगेंस्ट जाते भी नहीं हैं। बहुत बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे काफ़ी क्रेडिबल हैं, वो तो हैं, लेकिन जो क्रेडिबल नहीं भी हैं, उनको भी ये डाउट होता है कि स्मार्ट बीएमएस भी फ़ोन पे कुछ दिखाता है, आपका भी फ़ोन पे कुछ दिखाता है, तो स्मार्ट बीएमएस अच्छा है। तो 3-4 हज़ार रुपए में आता है, आपका बहुत कॉस्टली है, तो हम वो यूज़ करेंगे और वो ईज़ी है। अब उनको अगेंस्ट में नहीं जाते, वी डोंट पिच इट अगेंस्ट स्मार्ट बीएमएस। व्हाट वी डू, वी एक्सप्लेन हाउ द एनालिटिक्स लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेसिक स्मार्ट बीएमएस। ओके, डॉक्टर में और स्मार्ट वॉच में फ़र्क है, राइट? If you have a smartwatch with you, you can monitor the parameters rightly and then you can take care of your body, right? But when anything goes wrong, then you can't rely on that smartwatch, then you go to the specialist, ठीक है? जो आपको diagnose करके right चीज़ें बता दे। Okay, in India, doctors also propose the pharmacy part, but that is not us. So we are doing diagnostics, a third party independent diagnostics that will share the truth without getting any biases from any OEMs. लवली, अमेज़िंग। सो आई एम एबल टू रिलेट कि आजकल एआई को यूज़ करके और रिमोट सेंसर्स को यूज़ करके लॉट ऑफ ई-क्लिनिक्स आर कमिंग अप, राइट? व्हिच विल Correct. डायग्नोज़ एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं वो डॉक्टर्स देंगे, मतलब दवाइयाँ जो देनी है वो डॉक्टर्स देंगे, लेकिन एटलीस्ट डायग्नोसिस ऐसी जगहों पर हो सके जहाँ पे डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू रीच, राइट? सो Correct. गुड कांसेप्ट, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। तो क्या होता है अगर ईवी डॉक्टर का जो डिवाइस है, जो आपका बेंचमार्क है, जो आपका प्रोडक्ट है, अगर वो किसी भी बैटरी में बताता है कि एंड ऑफ लाइफ ये बैटरी है, तो उसके बारे में अगर बताया जाता है तो व्हाट डज़ इट डू? उसके बाद Okay. क्या So कर ओके, सो एंड ऑफ लाइफ के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो नॉर्मली रहती है। सो हुँ, या तो हम रीयूज़ करें, सो वी आइडेंटिफाई, हम पैक का डायग्नोस्टिक्स करते हैं। वी डोंट डू द डायग्नोस्टिक्स ऑफ मॉड्यूल और सेल, राइट? सो ये बैटरी पैक डायग्नोस्टिक टूल है, जिसमें उनको कैपेसिटी, एसओएच जो भी पैरामीटर्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो मिल जाते हैं। एंड ऑफ लाइफ का एग्ज़ैक्ट एस्टिमेशन हमारे ईवी डॉक्टर से सीधा नहीं होता है। वो एंड ऑफ लाइफ उनको खुद निकालना पड़ता है कि हाँ, हमने इतने पैरामीटर्स देख लिए, अब लग रहा है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है। नॉर्मली अगर हम थंब रूल बोले तो 85% से कम कैपेसिटी जब अ, मतलब रह जाती है, सो हम एंड ऑफ लाइफ बोल देते हैं। अब यहाँ पे रिफर्बिशिंग एक स्मार्ट ऑप्शन है। अगर रिफर्बिशिंग नहीं है, सपोज़ उसका कैपेसिटी बिलो 70%, बिलो 60% है, देन दे कैन गो फॉर रिसाइक्लिंग, जिसमें हम ब्लैक मास एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट या दूसरे जो स्लरी बनाते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं और जो हम नहीं करते हैं, जो कि रेलेवेंट पार्टनर्स होंगे वो करेंगे। सो एंड ऑफ लाइफ के 2 सीधे एप्लीकेशन ये है, रीयूज़ या रिसाइकिल, या रिफर्बिश या रिसाइकिल। द थर्ड वन इज़ हम उन्हीं में से स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज के लिए बड़े बीईएसएस बना सकते हैं, बट इन इंडिया बीईएसएस अभी इतना मतलब अभी इतना स्केल्ड नहीं है। ओके, सो इन वेस्टर्न मार्केट्स इट इज मैच्योरिंग, बट इन इंडिया अभी भी रीयूज और रिसाइकल ही ज्यादा फोकस रहेगा। बैटरी ओके, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें एंड एनर्जी एआई के नाम से आप लोग कुछ कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। एनर्जी एआई लैब्स के नाम से आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें सबसे टफेस्ट पार्ट अभी तक की जर्नी में क्या रहा है? वो उसमें से कुछ शेयर करें। ओके, सो सबसे टफेस्ट पार्ट जो आपने भी सचिन जी देखा ही होगा एज पार्ट ऑफ रेडॉन, that when you are convincing that the trust is there, but even after testing your products for n number of times, the trust is still missing because they can't directly trust an Indian product over an imported one. Okay, हुँ, because हुँ, your color, your skin color and my skin color is matching, so I can't directly trust you. And this is a very irrational statement, I know, but हुँ, still we have faced it a lot. Even after testing and verifying all the details and insights and features, people trust a random uh, imported battery intelligence company, and then
When they are satisfied or dissatisfied, after few months or years, they come back to us. कि अरे तुम देख लो यार, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। So this will be built with time. Obviously, high trust can't be built within few years. So we are obviously working on it, and we are making sure that no consumer complaints are there, because it's quite common in the EV industry and battery industry. सही है। सो जनरली लोगों का रुझान जो होता है वो सॉफ्टवेयर लेड कंपनीज़ की तरफ होता है और सबको पता है कि हार्डवेयर बेस्ड बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट लेना भी बहुत टफ है एंड लोगों का इंटरेस्ट ड्रैग करना ईज़ी नहीं रहता। फिर भी आपने हार्डवेयर चूज़ किया तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? या सो बहुत इंटरनल रीजन है। सो आई हैव बीन वाचिंग आर्ट अटैक एंड मैड एंड नंबर्स गेम। सो बचपन से वैसी चीजें बहुत देखी जिसमें हम ओरिगामी या क्राफ्ट्स करते थे। सो आई हैव ऑलवेज लाइक टेंजिबल प्रोडक्ट्स ओवर सॉफ्टवेयर एंड लाइक द सोल पार्ट ऑफ इट। सो बॉडी एंड सोल दोनों रहेगा, देन इट मेक्स मैजिक। सो दैट वाज द ओनली हाइपोथेसिस। इंजीनियरिंग मास्टर सब में आई हैव कीप आई केप्ट बिल्डिंग थिंग्स एंड रोबोटिक्स हो या कोई और क्लब हो जहाँ पे ड्रोन्स है, जहाँ पे any type of tangible products are there. So I became part of it. I'll not say that I was leading it, but I became part of it just for just for quenching the curiosity part. So ये चलता रहता था. So the love for tangible products pushed me to build hardware. लवली। सो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आइडिया दिमाग में आता है तो इट इज़ द फाउंडर हू कंसीव्स द आइडिया, राइट? And it's your child. Not everyone is able to understand. Others will not understand at all, for sure. At least initially they will not understand. So people might have been skeptical towards you also. आस-पास वाले लोग ने ज़रूर बोला होगा कि ये क्या है? ये कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है लग रहा है। तो ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ है? कुछ शेयर करिए। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली हुआ है और आई विल बी हैप्पी टू शेयर, क्योंकि बहुत मज़ा आया था वो सुन के। सो आई हैव हमने ये इनिशियली बिल्ड कर दिया था। आप बोल सकते हो मज़ा आया था। उस टाइम तो हालत टाइट हो जाती है जब हाँ, उस 100 टाइम लोग हाँ, सब बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम एक लोकल वेंडर के पास गए थे, लोकल डीलरशिप के पास। हमने पहला प्रोटोटाइप बना दिया है और हम कुछ कंपनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी के लिए हम डीलर्स के पास भी जा रहे थे, कि हुँ, हमको पता चले उनका इनसाइट क्या है। हम गए, हुँ, उनको डिवाइस दिया, उन्होंने रैंडमली बोला ठीक है लगाओ, देखते हैं बैटरी पे क्या आता है। रिजल्ट्स हुँ, देखे तो रिजल्ट्स उन्होंने बोला ठीक है ये तो अच्छी बैटरी है, खराब बैटरी लेके आओ। तो खराब बैटरी लेके आए, उसमें चेक किया, उसमें भी सारे पैरामीटर्स ठीक-ठाक आए। तो एक्यूरेसी हुँ, ठीक-ठाक थी स्टार्टिंग से। हुँ, अब उन्होंने मुझे बोला कि कितने का है? तो मैंने हुँ, बोला कि ये तो हम प्लान कर रहे हैं 25-30 हज़ार रुपए का बेचेंगे। तो बोले ये तो छोटा इतना सा प्रोडक्ट है, इसका थोड़ी कोई 25-30 हज़ार देगा। हुँ, ओके, सो हमने बोला कितना दोगे आप? तो बोलते हैं हुँ। कि 500 रुपए दूँगा मैं मैक्सिमम, ठीक है। उसमें कनेक्टर्स कनेक्टर्स इंक्लूडेड है और 500 से ज़्यादा अगर आप बेचोगे तो एक भी नहीं बिकेगा, ठीक है। हुँ, और हुँ, मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कि शायद लाइफ़ इस पे लगा दी और ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी पुराने ईवी डीलर से। वो 15 साल पुराने ईवी डीलर्स हैं। तो हुँ, अभी भी उनसे रिलेशन अच्छा ही है। सो उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया तो दिमाग हिल गया, पता नहीं चला था क्या करें, जॉब जॉइन कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ कहीं और या एक काम करता हूँ टीचिंग का जॉब ले लेता हूँ। हमारे फैमिली में कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मीण फैमिली, यहाँ पे टीचिंग के लिए सब लास्ट में टीचिंग या फिर जो भी उनको अच्छा लग, लास्ट में कुछ ना समझ में आए तो टीचिंग करो, ठीक है। सो हमारी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स ये सारे लोग हैं, तो हमने सोचा वही कर लेते हैं। 1-2 महीने वो रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा 1-2 दिन में मैं सॉल्व हो गया और एकदम दिमाग क्लीन हो गया, ऐसा नहीं था। 1-2 महीने तक रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। अनलेस हमने एक ब लिथियम बैटरी कंपनी के साथ काम किया। उनके साथ काम किया, उनके यहाँ डेली बैटरी डिफेक्ट्स में आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे सेल्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे इंडिया में, तो हुँ, पूरे डंप ही हो रहे थे। हुँ, तो वहाँ पे जब उन्होंने यूज़ किया तो उनको काफ़ी वैल्यूएबल लगा और वो बैटरी चेकअप का ही हज़ार-हज़ार रुपए चार्ज कर रहे थे। सो उनको कस्टमर के लिए ये सीधा रेलेवेंस दिख गया कि मैं ज़्यादा बैटरी चेक कर पा रहा हूँ, ज़्यादा रिपोर्ट दे पा रहा हूँ और मेरा रिकवरी 3 दिन का है। तो 3 दिन में उनके 25,000 हज़ार वसूल हो जा रहे थे। तो फिर वहाँ से क्लैरिटी आई, वहाँ से काफ़ी कुछ हुआ। तो लवली, वो यूरेका मोमेंट था। लवली।
सो ग्रेट फाउंडर की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है वो हम लोग सब देख रहे हैं और अपनी लाइफ में देखा है, आपके साथ देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली में थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो प्रोडक्ट एक्चुअली बैकएंड पे कर क्या रहा होता है? व्हाट व्हाट डज़ इट डू? एंड एक और बात बताइए कि वेदर इट इज़ डज़ वर्क विद ऑल द केमिस्ट्री अक्रॉस या फिर कुछ स्पेसिफिक केमिस्ट्रीज़ के लिए काम करता है? अच्छा, सो मैं पहले प्रिंसिपल पे आता हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री पे आ जाऊँगा। सो प्रिंसिपल ऐसा है कि हम वोल्टेज करंट टाइम को हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हमने बनाए हो, जिसमें आप जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें XGBoost है, एक्सटेंडेड काल्बान है, जितने भी फ़िल्टर्स हैं, वो हमने इनिशियली डाल दिए थे, ठीक है? सो हम कोई भी जो ओपन सोर्स है, उसके बेसिस पे नहीं, वो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, जो बेस्ट ओपन सोर्स था। वो यूज़ करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज करंट और टाइम को इनपुट में लेते हैं। प्रिंसिपल वाइज़ हम क्या करते हैं, डीसीआईआर कैलकुलेट करते हैं। डीसीआईआर क्या है? डीसी इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हुँ, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एससीआई के थिकनेस के हुँ, अगेंस्ट, राइट? सो डीसीआईआर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक है जो रेजिस्टेंस होता है R इज़ इक्वल टू रो L बाय, एक रेजिस्टेंस होता है V बाय I, और दोनों की वैल्यूज़ बहुत बार अलग आती है, बिकॉज़ वो फिजिकल पैरामीटर्स पे बेस्ड है और ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे बेस्ड है, राइट? सो हमने चाहा कि इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सब कर रहे हैं, जिसमें वो पल्स प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के साथ खेलते हैं। हम डीसीआईआर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम विदिन सेकंड 10 रीडिंग्स लेंगे ऑफ डीसीआईआर, ऑफ बैटरी पैक। और डीसीआईआर के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि एससीआई लेयर कितना फॉर्म हुआ होगा, ओके? वो बैटरी पैक के लिए, ठीक है? जिसमें सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के टोटल एससीआई इतना फॉर्म हुआ होगा एक एवरेज सेल के ऊपर। फिर हमने उस पे काम किया, हमको पता चला कि कंटीन्जेंसीज़ डालनी पड़ेगी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, निकल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें कंटीन्जेंसी में इंक्लूडेड होती है। सो डीसीआईआर कंप्यूटेशन होता है। इन पैरेलल विद दैट हम वोल्टेज करंट प्रोफाइलिंग करते हैं। सो एज़ द बैटरी एजेस, वोल्टेज करंट प्रोफाइल चेंज होता है और वो शिफ्ट होता है। धीरे-धीरे वोल्टेज का प्रोफाइल लंबा होगा और नीचे आएगा, राइट? सो वो भी इंक्लूडेड है उन मॉडल्स में। वो कैलकुलेशन होने के बाद हमने बैटरी के इनसाइट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हेल्थ, परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड फॉल्ट्स। सो सबसे पहले हेल्थ आता है, तो हेल्थ के लिए हमने डीसीआईआर कैलकुलेट किया, वीआई प्रोफाइलिंग किया। सेफ्टी के लिए हमने डीसीआईआर किया, जिसमें हम एससीआई को एग्ज़ैक्टली मेज़र कर रहे हैं। एससीआई में अगर लिथियम प्लेटिंग है, डेंड्राइट फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से थर्मल रनअवे के चांसेस हैं, सो वो हमको पता चल जाता है। अगर कोई थर्मल अब्यूज़ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अब्यूज़ है, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। थर्ड है परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस का बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है एसओसी, एसओएच, कैपेसिटी। अ, हमको अगर करंट रेट निकालना है, वो भी उसमें पता चल जाए। सो परफॉर्मेंस में बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, जो कि स्मार्ट बीएमएस में भी होते हैं। हुँ, लास्ट है फॉल्ट्स, जो कि हमारा मेन मोट है, या आप बोल सकते हैं यूएसपी है, कि 10 ऑन ग्राउंड फॉल्ट्स जो रियल में बैटरीज के साथ हो रहे हैं इंडिया में और बाहर, वो हुँ, सारे हमने क्लब किए जो यूनिवर्सल हैं, वो फॉल्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये ओसीपीपी बेस्ड नहीं है, सो कैन नॉन कैन दोनों में काम करता है। उसमें वाटर डैमेज, डीप डिस्चार्ज, इम्बैलेंस फॉल्ट, रिवर्स करंट फॉल्ट, एजिंग एरर, ये सारे फॉल्ट्स उसमें हमको पता चल जाते हैं। सो जैसे ही ये इनसाइट्स इनको मिलती है, जो भी ईवी बिज़नेस ओनर है या बैटरी बिज़नेस ओनर है, वो इसके बेसिस पे काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं। और ये पूरा टेस्ट सिर्फ़ 15 मिनट में होता है। ठीक है? और जिसके लिए हम मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं। अब इसमें एआई एमएल यूज़ होता है एससीआई प्रेडिक्ट करने के लिए, कि अगर इसका ऐज ऐसा ही रहा, सो इतने टाइम में इसका थर्मल रनअवे का चांसेस है, तो हम इसको अभी किस लेवल पे दिखाएँ, राइट? फिर फॉल्ट्स में हम एनोमली डिटेक्शन के एमएल मॉडल्स यूज़ करते हैं, जिसमें एसवीआर है, आरएफ है, ये सारे मॉडल्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये है। और अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल टेस्ट करना है, तो वो चार्जिंग टाइम लेगा। तो उसमें वो दूसरा मोड है, उसको हम नॉर्मल मोड बोलते हैं। विदिन जो भी चार्जिंग टाइम नॉर्मल मोड में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, और सारे पैरामीटर्स जो भी उनको पैरामीटर्स जानने हैं, वो और एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। अभी 15 मिनट्स फ्लैश टेस्ट में एक्यूरेसी 97-98% आ रही है, और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल टेस्ट में 98.34% आ रही है। लवली, अमेज़िंग। सो जब आप ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज़ में आया? हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में या एडॉप्शन में? मेजर चैलेंज किस सो चीज़ में?
हाँ, तीनों में, सब में आया और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा अगर मुझे आता होता तो न एक ही चीज़ में आता बट हार्डवेयर में इसलिए कभी हार्डवेयर हमने एज़ अ कंपनी नहीं बनाया था, हमने हमेशा प्रोजेक्ट की तरह हार्डवेयर बनाया था। सो डीएफएम डिज़ाइन करना, रिलायबिलिटी मेंटेन करना, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन रखना, ये सारी चीज़ें, कंप्लायंस रखना, पेटेंट्स, सर्टिफिकेशंस ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। सो ये डीएफएम और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स डेटा ना होना, रियल टाइम ओपन सोर्स ईवी और लिथियम बैटरी का डेटा जो नासा वाला है, बैटरी आर्काइव वाला है, जो भी डेटा सेट्स हैं, वही हम इनिशियली खेल रहे थे। बाद में हमको पता चला कि हमको खुद को ही डेटा जनरेट करने पड़ेंगे अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये दूसरा चैलेंज था और थर्ड वन मार्केट एडॉप्शन में ये था कि हम सब जगह डेमो नहीं दे पा रहे थे। सो सपोज़ नागपुर में एक ईवी डीलर है और वो हमको बोल रहा है कि हमको यहाँ आके डेमो दो। और कोई लेगेसी ईवी बैटरी टेस्टिंग टूल कंपनी है या इक्विपमेंट कंपनी है, वो उधर उनको जाके डेमो दे सकती है, हम नहीं दे सकते। So even with good product or great product or better product, if you don't have a right distribution, so that problem arises. अभी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, so the like that problem is resolved a lot. लेकिन अभी भी we are building like partners for demo, जिसकी वजह से हम सच में उनको इन पर्सन फील दे पाए। सो आप क्योंकि स्ट्रगल की बात हो रही है तो आप डेफ़िनेटली एक डेस्टिनेशन पे पहुँचे होंगे। सो आई वाज़ रीडिंग समव्हेयर कि काफ़ी कंट्रीज़ में आप ऑलरेडी प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़े ऑडियंस को बताएँ? ओके, सो सबसे पहला हमने आउटसाइड इंडिया क्रैक किया था, वो था रेमसा करके एक कंपनी है मेक्सिको में। सो उन्होंने हमको लिंक्डइन पे डायरेक्टली रीच आउट किया दैट शुभम यू आर डूइंग गुड, ये वो जो भी है। और ईवी डॉक्टर के बारे में उन्होंने पूछा, मैंने उनको बेसिक कैटलॉग भेज दिया, मुझे पता था नहीं लेने वाले। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट पे डायरेक्टली भरोसा नहीं करेंगे, मैं कैटलॉग भेज के रख दिया। उन्होंने बोला एक बार कॉल पे आते हैं, तो मैं ठीक है कॉल पे आते हैं। स्पेनिश मुझे आती नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत मैं सीखा। मैं बोला कि एकदम ही रैंडम ना लगे, तो सीखा मैं। फिर बात करना शुरू किया, 1 हफ्ते के अंदर कॉल था, 15-20 मिनट लगी होगी कॉल में और उन्होंने डन बोल दिया कि हमको कुछ यूनिट्स चाहिए, आप मुझे भिजवा दो। हमने हमारे पास सर्टिफ़िकेशन और कंप्लायंस उस टाइम पे नहीं थे, हमने सर्टिफ़िकेशन कंप्लायंस ले लिए, सीई ले लिया, आरओएचएस ले लिया। उसके बाद 1-2 महीने बाद हमने उनको सप्लाई कर दिया। बाद में उन्होंने खुद ने एक वीडियो बना के डाला टेस्टिमोनियल उनके लिंक्डइन पे, जिसकी वजह से हमको वर्ल्ड वाइड रीच काफ़ी मिला। फिर हम मतलब वियतनाम को दिया, वाह! मॉरिशस में दिया, इंडोनेशिया में दिया, चाइना में दिया। हमने अभी रिसेंटली यूएस में 2 यूनिट्स दिए, मलेशिया में कुछ यूनिट्स दिए, फिर यूरोप में हमने म्यूनिख पे दिया, एम्स्टर्डम में दिया, जहाँ पे ईवी एडॉप्शन, माइक्रो मोबिलिटी एडॉप्शन ज़्यादा है। गूज़बम्प्स फील हो रहा है, अमेज़िंग। दैट्स द पावर ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, राइट? लवली। सो डू यू अब पूछने की बात नहीं है बट यू माइट बी रियली फीलिंग दैट एआई और डेटा एनालिटिक्स जो हैं, वो बैटरी को किस तरह से मेंटेन करना है और बैटरी को रिसाइकिल कब करना है, कैसे करना है, उसको डेफिनिटली इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज़, करेक्ट, राइट? व्हाट वुड यू से? करेक्ट। सो राइट फ्रॉम दैट इनसाइट कि जिसमें हमने देखा था कि बैटरी वो ऐसे फीवर की तरह चेक कर रहे थे। व्हाट वी हैव हुँ, आइडेंटिफाइड आफ्टर टेस्टिंग अ लॉट ऑफ बैटरीज, lakhs ऑफ बैटरीज, दैट हुँ, if we are able to provide some brain to the batteries, they can manage themselves easily. हमको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हुँ, बैटरीज़ में। अभी हम सिर्फ़ उनको स्वैप और उठाने के लिए लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके चार्जिंग टाइम का, उसके ट्रिकल चार्जिंग का, उसके चार्जिंग पैटर्न्स का, कौन-सा कर्व फॉलो करवाना है, कब करवाना है, पार्शियल चार्जिंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो खुद मैनेज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर बैटरीज़ खुद सोच पाएँ, तो हम उनकी लाइफ़ आराम से बहुत सारी बढ़ा सकते हैं और एट लीस्ट 20-30% हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक एवरेज पर्सन के लिए जो बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, वो कुछ टाइम के लिए टाल देगा, ठीक है। सो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले बैटरीज़ पे काम करते हैं, हम बैटरी ओएस बनाते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बैटरीज। हम कुछ रोबोटिक्स कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं वेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द एपीआईज फॉर बैटरी मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स पार्ट। सो जो भी हमारा डेटा था जो कि बैटरी टेस्टिंग से हमको मिला था, उससे हमने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई की और वो डेटा एंड वो नॉलेज बाकी सबके भी काम आ सके, इसलिए हम बैटरी ओएस बना रहे हैं। एंड द हुँ, इवेंचुअल विजन फॉर एनर्जी एआई लैब्स इज टू बिल्ड एनर्जी सुपर इंटेलिजेंस। सो जो हमने बैटरीज के साथ किया,
अगर हम बैटरी को दिमाग दे सकते हैं, तो हम कोई भी एनर्जी नोड को दिमाग दे सकते हैं, राइट? सो सपोज़ एनर्जी आपसे खुद बात कर पाए, और ये सिर्फ़ ऑटोमेशन लिमिटेड नहीं है, राइट? इट शुड मैनेज इटसेल्फ, और जिसमें सेविंग्स तो एक बाय प्रोडक्ट है। 30-40% इन एनर्जी सेविंग्स बाय प्रोडक्ट आएगा, ओके। एनर्जी सेविंग्स के नाम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन के स्मॉल मॉड्यूल्स हर इवेंट में आ जाते हैं और बिकते हुए दिख जाते हैं। फिर हमने थर्मोस्टेट्स देखे, नेस्ट का एग्ज़ाम्पल्स देखा, यूएस में सेंस और स्पैन है, जो कि स्मार्ट मीटर से डेटा कलेक्ट करके डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। उसके बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन से अप्लायंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। बट व्हाट इफ एनर्जी कैन थिंक ऑन बिहाफ ऑफ यू, एंड देन दे कैन एक्ट आल्सो। सो ओवरऑल अगर हम एनर्जी को थिंक करवाएँ और उसको मैक्सिमम कर दें, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुँचा दें, तो वो एनर्जी ऑटोनॉमस हो सकती है। जैसे हम एडैस देखते हैं कार्स के लिए, वैसे एडैस एनर्जी सिस्टम्स के लिए भी बनाया जा सकता है। और ये हमारा एक हम्बल क्वेस्ट है, सब जिसमें हम स्टार्टिंग बैटरी से करेंगे, फिर हम एनर्जी को ऑटोनॉमस बनाएँगे लेवल बाय लेवल। वाओ! ग्रेट, लुक्स इंटरेस्टिंग। सो अब बात आते हैं मैक्रोज़ पर। आप यू आर इन इंडिया, सो इंडिया में हाउ आर यू फीलिंग, इंडस्ट्री अभी किस तरफ मूव हो रही है? चैलेंजेस क्या हैं? ईवी एडॉप्शन को लेके व्हाट इज़ योर व्यू? इसके बारे में थोड़ा शेयर करें। सो काफ़ी मीडिया और पीआर में 1-2 ट्वीट्स मेरे पकड़े गए हैं, लेकिन मैं उन पे नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या है। सो इंडिया में ईवी एडॉप्शन कुछ हीरोज़ लेके आए, और वो हीरोज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वज़ह से हमको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, और भी बहुत सारे बिज़नेसेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, बिज़नेसेस, और भी जो बॉडीज़ हैं जो ईवी में काम करती हैं। जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट पुश बहुत इम्पोर्टेंट था। अभी गवर्नमेंट पुश को असाइड रख के मैं आता हूँ जो प्रोमिनेंट प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या किया। सो हमने हमेशा मंथली सेल्स कौन सी कंपनी कितना कर रही है वो कंपेयर करते सब चार्ट लगा-लगा के लिंक्डइन पे एंगेजमेंट बटोरा, ठीक है? और वो एंगेजमेंट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब उसमें सेल्स की साइकिल ही देख रहे थे। अब जो 21 में 22 में पीक आया था उसकी सर्विस का टाइम आ चुका है, और वो सर्विस की गाड़ियाँ इकट्ठा हो रही है एन नंबर ऑफ ईवी ब्रांड्स के साथ। कुछ डील कर पा रही है, कुछ डील नहीं कर पा रही है, कुछ पीआर कंट्रोल कर पा रही है, कुछ पीआर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आईपीओ ही एक सेंसिबल एग्ज़िट लग रहा है, ठीक है? ईवी ब्रांड्स के लिए। जिसमें काफ़ी ब्रांड्स ने कैसे-कैसे आईपीओ किए हैं, और काफ़ी ब्रांड्स ने बहुत रिलायबल आईपीओ किए। सो जिसकी वजह से कस्टमर ट्रस्ट ईवी को लेकर बहुत नेगेटिव है। अब हैविंग सेड दैट, पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सेंस बना रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाला सेंस बना रहा है। इफ वी आर एबल टू सॉल्व द आफ्टर सेल्स पार्ट इजीली विथ और विदाउट ईवी डॉक्टर, आई एम नॉट पुशिंग माय प्रोडक्ट हियर, कोई भी चीज करके अगर हम आफ्टर सेल सपोर्ट सॉल्व कर देते हैं, देन इट विल बिकम ऑब्वियस एंड ओमनी प्रेजेंट कि हाँ, एक्टिवा लेना है या ये लेना है, या आईसी व्हीकल लेना है या पेट्रोल ले लो, ईवी ले लो, जिसमें कॉस्ट का इतना ही फ़र्क है, ठीक है? डायरेक्टली सेकंड सेंटेंस ये नहीं निकलना चाहिए कि सर्विस में इश्यू आता है, इसको रहने दें, ठीक है? सो दैट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग बैटरी पैक वेंडर्स आल्सो, नॉर्मल कंपोनेंट प्लेयर्स आल्सो, डीलरशिप्स बहुत सारी बंद हो रही हैं, क्योंकि कस्टमर्स और ब्रांड्स दोनों डीलरशिप्स का दिमाग खा रहे हैं। ब्रांड्स बोल रही है ये वाला प्रोडक्ट बेचो, कस्टमर्स बोल रहे हैं पुरानी कंप्लेंट सॉल्व करो। सो ये लीगल इश्यूज भी हैं। सो 2 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, आफ्टर सेल्स के इश्यू बहुत है। सेकंड, अगर आफ्टर सेल्स में हम सॉल्व करते हैं तो ईवी अडॉप्शन बहुत बढ़ सकता है। जो 2030 का टारगेट है वो 2028 में ही अचीव हो सकता है, और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अर्ली एडॉप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। दे वांट टू बिलीव दैट ईवी शुड विन, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम। ग्रेट, ग्रेट थॉट। तो गवर्नमेंट का रोल आपको क्या लग रहा है? इज़ द गवर्नमेंट वर्किंग टुवर्ड्स द एडॉप्शन, और डू यू थिंक दैट एफर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट? स्ट्रेट आंसर। Yeah, efforts are sufficient enough because they provided the ramp to get the initial adoption right. हमने आफ्टर सेल्स में प्राइवेट प्लेयर्स ने जो भी एसओपीज या रेगुलेशंस या सपोर्ट देना चाहिए था, दैट वाज नॉट इनफ. In spite of saying this also, government should also see
what is happening on the after sales side and penalize the wrong players, right? So that's where the government support is lacking. Otherwise, if we have solved the after sales right, then like just like random ICE vehicles, if they are serviced anywhere and everywhere, yeah, EVs can be serviced anywhere and everywhere. Yeah. So adoption बढ़ जाएगा उससे, right? So EV tech में where are we standing? Do you think that Indian products really can be made acceptable across the world or not? What is your say on this? Yeah, a big yes, because many of our EV brands are exporting also, like Ultraviolet, Ather. Then on the component side, we have Sedemec. So these are some like really good players which are pushing this EV envelope towards the Battery. globe. Yeah, Battery OK is trying to do that, but not there yet, because like our main vision is on the Energy AI Labs, that we have realized gradually that we want to love with the energy. We want to love the energy and tech part. Yeah, so we are on that front. Yeah, so we did a small contribution, but Ether, Ultraviolet, Sedemec, these are some like really good players that we need to look upon. Great. So what has been your strategy coming to the business part? What has been your strategy to expand to each to deeper parts of India? Partnership that you're looking for, or you have done some partnerships? Is it some distribution model that you have done? What has clicked for you? What hasn't clicked for you? Could you share something about that? Sure. So we initially started off on using the LinkedIn platform only. So we leveraged the LinkedIn platform. We put normal, professional, and curious content so that any EV or battery enthusiast can resonate over it. Later on, we found that online distribution is not enough, because EV dealers and EV businesses, they want physical products. So they need to have an in-person feel about it. So that's why we have onboarded some really fantastic distribution players, right from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka. So all this states, they have been really kind to us, where the EV adoption is very high. Like there is a thumb rule, like below Madhya Pradesh, electric two-wheeler adoption is high. Above Madhya Pradesh, electric three-wheeler adoption is high, right? So we are like more focused towards electric two-wheelers and ESS, and small ESS, UPS, inverter batteries. They all can be tested using EV Doctor. So initially online, now offline. Apart from that, we also got a lot of orders from Robu, from Amazon. So ecom has also helped us. So our recipe was simple: build good product, make sure that it is not performing like very wrong or very vague. So and then make sure that it hits the right business or stakeholders. Affordability is something that Indian market looks at. Okay. So how do you think that affordability, this product, whatever you have made, how is it that impacting the affordability, acceptance of the product? Okay, so affordability, yeah, it has impacted a lot. We have tried subscription model also, where we were providing this unit at 5,000 rupees only, and we were charging 100 rupees per test. But EV dealerships, showrooms, and service centers, they are not very keen to provide that subscription charges, and mostly that buyer and that user are different. That user is not paying from his own pocket, so that becomes a challenge. So we have tried that, but we have made sure that this is making sense to them and us as well, because we have to provide high grade components inside it. We have to provide the service support also. Initially it might look expensive, but if you compare it with all other battery testers which are doing capacity testing and all, they are costing above 30,000 rupees, with no support related thing around you. Okay, so all of them, like majority of them, are imported ones. You have to talk to a distributor. He will provide you one demo or something like that. But when the support is really required, you will see the difference why that was cheap. So Shubham, one burning question और बहुत interesting है क्योंकि I have heard this noise a lot. There are a lot of garages in India. There are a lot of EVs in India.
क्या हम एग्जिस्टिंग गैरेजेस को ईवी रेडी कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? डेफिनिटली दैट्स ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट एंड कन्वर्सेशंस सेल्स फिगर्स और फैंसी फंडिंग राउंड्स के बारे में ही होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस। हम सारे गैराजेस को ईवी रेडी बना सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे एक्टिवा एंड स्प्लेंडर हर कोने पे रिपेयर हो सकती है, हर मारुति हर कोने पे रिपेयर हो सकती है, हर ईवी भी हर कोने पे रिपेयर हो सकती है, अगर हम उनको राइट टूल्स दे दें तो। अगर उनके पास राइट टूल्स हो, जिसमें बैटरी टेस्टिंग आ गया, भले वो ईवी डॉक्टर से करें या कोई भी टूल से करें। उसमें बैलेंसर आ गया, सपोज़ बैटरी के बैलेंस का इश्यू आ रहा है। उसमें बेसिक मैकेनिकल टूल्स आ गए, रेंचेस आ गए, जिससे वो बैटरीज़ को, पार्ट्स को सीधा हैंडल कर पाएँ और राइट सप्लाई चेन आ जाए स्पेयर पार्ट्स का। अभी ब्रोकन सप्लाई चेन है, उनके पास टूल्स नहीं है, उनके पास बेसिक लर्निंग मटीरियल्स नहीं है और उनके पास ओवरऑल विज़न नहीं है कि इसमें हम बिज़नेस कैसे बनाएँगे। जब स्प्लेंडर, बजाज या एक्टिवा का कोई भी मॉडल जो सबसे ज़्यादा चला है, ठीक है? वो लॉन्च होता है तो साथ में वो पीछे एक सपोर्ट सिस्टम भी बन रहा होता है। ईवीज़ में हमने सेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया, सपोर्ट पे अगर एक्जिस्टिंग गैराज को इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, टूल समझ में आ जाए और स्किल्स राइट हो जाए, सो वो ईज़िली कोई भी गैराज को ईवी रेडी गैराज में बदल सकता सुपर्ब! So guys, है। one product of battery hooking technology, I'm going to order it right now, and it is not sponsored, okay? I'm just telling you, I'm going to order it right now. Are you going to order it right now or not? Check it, okay? So, Shubham, you are a visionary, you are a founder of a EV startup. 2030, 2032 में ईवी इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? किस तरह के व्हीकल्स मार्केट में दिख रहे होंगे? किस तरह के व्हीकल्स नहीं होंगे? किस तरह से आप ईवी इंडस्ट्री को विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं? ओके, सो बेसिकली ये होगा कि सारी ईवीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँगी, बात कर पाएँगी। ये मुझे सबसे पहला माइलस्टोन लगता है जो कि ईज़िली पॉसिबल है यूजिंग ब्लॉकचेन एंड एआई कंप्यूटिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़। दूसरा जो मुझे लगता है वो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस, कोई इश्यू नहीं होगा, वो खुद ही अपने आप को मैनेज कर पाएँगे। तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है फाइनेंस का, कि हम फाइनेंस कैसे करेंगे? हम हाइब्रिड जो फर्स्ट लाइफ और सेकंड लाइफ बैटरीज़ है, उनके हाइब्रिड से हम कॉस्ट इफेक्टिव बैटरीज़ भी बना पाएँगे। सो ये तीनों चीज़ें जो कि यूटिलिटेरियन साइड और यूटोपियन साइड दोनों कवर करती हैं। ग्रेट, अमेजिंग। सो व्हीकल मेंटेनेंस वाले जो पार्ट हम अगर बात करें, बैटरी मेंटेनेंस में वहाँ क्या चेंजेस आ जाएँगे? विद योर डायग्नोस्टिक टूल और विदाउट योर डायग्नोस्टिक टूल या ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएँगे उसके? सो सेल्फ सफिशिएंट वो ऑटोनोमस डिसीजंस ले पाएँगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू रहेगा, जिसमें बैटरीज़ और ईवीज़ खुद ही बता देंगे कि हमको अभी ये अलर्ट्स के थ्रू हमको ये चाहिए। ओके, अभी हमको बहुत बेसिक अलर्ट्स मिलते हैं, बाद में हमको काफ़ी एडवांस अलर्ट्स मिलेंगे जिसमें वो डेट के बेसिस पे बता पाएँगे कि 16 दिसंबर को मेरा डीप डिस्चार्ज होने वाला है या 18th को थर्मल रनअवे के चांसेस हैं या कुछ भी। सो जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहेगा अलोंग विथ एआई, वो डायरेक्टली हेल्प करेगा बैटरीज़ को ईज़िली मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जो बैटरी का लाइफ साइकिल है, राइट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो सारा ट्रेस हो पाएगा ब्लॉकचेन के थ्रू, जिसमें हम हैशेस राइट डिप्लॉय करके ये आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि ये लाइफ रियल है या हमको कोई काउंटरफेट पार्ट कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो अभी काफ़ी कैलेंडर लाइफ में, साइकिल काउंट में चेंजेस रहते हैं क्योंकि सब रैंडम चीज़ें कर रहे हैं। बाद में अगर हमारे पास ट्रेसेबिलिटी होगा यूजिंग ब्लॉकचेन, हम राइट फ्रॉम द सेल जिसमें जो आईआर, ईसीआईआर रिफ्लेक्ट होता है, से लेकर जब उसका ब्लैक मास बनता है, हम मेक श्योर कर पाएँगे कि कितना केमिस्ट्री चेंज हुआ है, कितने कंपोज़िशन में पोटेंशियल वाइज़ डिफरेंस आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी में डिफरेंसेस आए हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएँगे। सो एक कार्बन डेटिंग वाला अप्रोच भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। सो राइट फ्रॉम सेल लेवल टू सेकंड लाइफ या डिस्पोजिंग ऑफ लेवल तक हम इजीली पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, कैसे एक्ट करना है और एडेप्टिव टेक्निक्स ज़्यादा होगी। मुझे जो एकदम ईज़ी वे में मैं बता सकूँ किसी लेमैन को तो एडेप्टिव ईवीज़ और एडेप्टिव बैटरीज़ होंगी। Lovely, amazing. I have met a lot of founders, Shubham, but what I'm feeling is कि this is a really fresh perspective towards the battery industry and EV industry that I'm seeing from you. Thank you so much for sharing
all these insights, right? So शुभम, एक और क्वेश्चन मुझे, मे बी वी कैन से लास्ट लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे लेना है कि सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है, कि हाउ आर यू मूविंग टुवर्ड्स इट, एंड हाउ आर द थिंग्स गोइंग टू शेप अप इन फ्यूचर? So most of the SDGs that are defined, okay, the 15 of them, three of them are related to batteries, and others are more focused towards the overall sustainability of Earth. Okay, now coming to the three part, they include circularity, they include the production side incentives, or you can say the production where we have to reduce the carbon footprint, and third one is the like what value are we delivering to the society, what livelihoods we are improving, right? So we are making sure, like not me but we means the overall EV and battery ecosystem of India, we are making sure that those SDGs are aligned with the Paris Agreement. They are aligned with whatever COP is promising every year, or every like after 5 years or after 7 years, a drastic change happens, right? So we are already aligning with that. What we have to make sure in parallel with this is we are really impacting the society in a way positive manner than we are already doing, right? So it should not be just limited to the profits and what sales we are doing per month. It should be also about the circularity of the economics, so that every part of that ecosystem or every part of their life cycle gets affected in a positive manner. तो अगर ऑडियंस में अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस कुछ अधूरे रह गए या आपके क्वेश्चंस यहाँ कवर नहीं किए गए, तो go to the chat on LinkedIn page, put your questions in the comments. Shubham Misra will personally address to those questions, and it is going to be very, very interesting. So, Shubham, thank you so much for taking out time to be a part of the Vision Grid. My intention of doing this podcast is only one thing, that bringing out founder's story and the story of EV that is being created in India to the world, right? And my book is coming up, which you will be a part of that. And this book's name is India's EV Uprising, is the name of the book. We'll be Mhm. launching it, right? So let us see how things are shaping up. Thank you so much, Shubham. Great. Okay, Shubham. So one more question that is coming to my mind. Recently, I've seen a LinkedIn post wherein you have announced some online classes, kind of for coaching, kind of for people. I would like to know more about that. Yeah, so we have gathered a lot of learning materials after talking to a lot of EV business owners, dealerships, showrooms, normal brands, and OEMs. And we have made one handbook for that. उसके अलावा वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट हैंडबुक. वो हैंडबुक सिर्फ अकेले नहीं समझ में आएगी. सो माय co-founder Ajay Vashist, who is the CTO as well, so he is ex DRDO, he holds the technical grounds of it, and he has been the pillar behind the technical accuracy of EV Doctor. So he is taking a session on EV battery masterclass, where he will be covering all the crucial topics of batteries, right from the production part to the second life part, where you will get to know all the crucial aspects, like right from the handling, from the layman perspective, to the real engineering and the real science behind the battery tech. So I am sure that you will learn a lot about it. You can check out that LinkedIn post for more details. Superb, Shubham. So I think that this is going to be really, really helpful to people in the EV industry, enthusiasts of the EV industries, for sure. So, Shubham, thank you so much.